So I will chapter 3 popular. Okay, so very good morning everyone. Today I am going to take you queries regarding chapter 3. Okay, so all of you just raise your hand and one by one I will give you time. Okay, one by one you will ask your query and I am trying to solve it. Okay, okay. So number one is Good Sonam. morning, ma'am. Saurabh Tiwari Yes, want to ma'am. say one by one. बेटा, I will give you time. Just raise your hand. आप हाथ खड़े कर लो. I will give you time. Don't worry. Okay? We have 40 minutes. Saurabh Tiwari, yes. What's the problem? Then what is circle of elimination? Okay. What is circle of elimination? यानी this is the problem. Okay? Circle of elimination. Next. Next बच्चे को क्या problem है? Okay. I am telling the name. Manas, what's your problem? Ma'am, ma'am, in a one time I was saying one show, ma'am, in that somewhere, ma'am, there was something like that going naturally. One problem is from your circle of elimination. Circle of elimination. And what is Manas? What you are saying? Maybe whiteboard and some Arctic regions, ma'am, some light grow naturally. Ma'am, One by one. about the three and in that white, they can ma'am, your whiteboard is not sharing. I am sharing. I am sharing this whiteboard. Yes, Virat is sharing. Okay. Good. Students, mute. Ma'am, Okay. Number 2 queries from I am taking here. Teams. Okay. Manas, once again, what you are saying? Again tell. I am not getting it up. फिर से बोलो. मैम कहीं कहीं आर्टिक रीजन्स में मैम नेचुरली लाइट चलती है जो मैम वो क्या होता है You are talking about artificial satellite? नो मैम नॉट आर्टिफिशियल लाइट मैम नेचुरली द लाइट ग्लोइंग एट आर्टिक रीजन्स में लाइक अलास्का एंड ऑल नॉर्थ पोल साउथ पोल Can anyone, other students, can anyone explain what Manas want to ask? Anyone? मैम की नॉर्दर्न लाइट Sohan. मैम की हाँ. नॉर्दर्न हाँ. Ma'am, the northern light, that are called northern light, and it is created by the solar winds that blows on Earth. It is that comes from they create some lights that are often seen in Arctic regions like Antarctica and Greenland, so that are called northern lights. बेटा आयुष्मान, आप जो बोल रहे हैं, आपको की आवाज इतनी ज्यादा इंटरप्ट हो रही है कि मुझ तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है. आप कहना क्या चाह रहे हो? Ma'am, something called aurora borealis, ma'am. Okay. I am not getting you, Manas. अभी म्यूट करो. मुझे आपकी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही. आप क्या बोल रहे हो? सोहन, what's your problem? Sohan. Ma'am, we know that Earth rotates and do revolution. हाँ. Ma'am, my question is that why Earth rotates and what is the reason that Earth rotates? Okay, you are asking the reason for rotation, right? Good Yes, point. ma'am. I am writing here. You are asking here reasons for rotation of the earth. You are asking. Clear? Yes, ma'am. Okay. Rotation कैसे कर लेते हैं? Okay. Next question is from Yash Kumar. What's the problem? Yash. मुझे एलिप्टिकल और ये सब समझ में नहीं आ रहा. Yash, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? एलिप्टिकल और ये Elliptical orbit. This is your problem. Okay, Yash. ठीक है. Elliptical orbit. Okay. Elliptical orbit. Okay. Next question from next is from Ansh. अब हाथ नीचे कर लो. Suman, hands
solstice. Good question. Okay, I will explain. Winter and summer. Winter solstice से समझ लो. चलो इसी से हम बाकी चीजों को समझा देंगे. Winter solstice. Okay. Any other queries regarding this? इसके अलावा कुछ और भी है? कोई queries? With Ansh, hands down. Yes, hands down. Vedant, what's the problem? मुझे डायग्राम नहीं समझ आया. Okay, Vedant. Okay, diagram I will clear. Abhinav Singh. Yes, Vedant. Vedant, what you are saying? Yes. Ma'am, diagram. Okay, Vedant. Okay, Vedant. I am getting. Abhinav Singh. Vedant, mute करो. I am getting. Abhinav Singh, what's the problem? Yes, बेटा. Leap year. Okay, leap year. ठीक है. प्रियंका यादव, what's your problem? Priyanka, you are talking about winter and summer solstice? Okay, Priyanka, mute. Getting. Shraddha, what's your problem? Okay, Earth day. Okay, Shraddha, got it. Rashik, what's your problem? Okay. Next बताइए जो दूसरे बच्चे हैं. एक बच्चे ने अर्थ डे कहा, एक बच्चे ने लीप ईयर कहा. ठीक है, वेरी गुड. अभी नेक्स्ट जिन बच्चों ने अपनी क्वेरीज कर ली है वो हैंड्स डाउन कर लो. अभिनव सिंह, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अभिनव सिंह, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओके, अभिनव म्यूट. छवि, अभिनव हैंड्स डाउन कर लो बेटा. छवि, यू टेल. I can't understand the equinox ओके, छवि प्रसाद. and the leap year also. ओके बेटा, ओके. यथार्थ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बेटा व्हाट? यथार्थ, क्या बोले आप? यथार्थ के बाद पुलिस व्हाट्स द प्रॉब्लम? Ma'am, my problem is, ma'am, in how the season change in where there is already cold. Very good. All the years. Okay, Tuli, very good. I am getting you. Priyanshu, what's your problem? Ma'am, my problem is elliptical orbit. ओके. ये जो क्वेश्चन अभी मेरे पास आए हैं लिस्ट, क्या इस लिस्ट के अलावा, ये जो लिस्ट आई है इसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चंस हैं? अगर किसी बच्चे के मन में तो वो मुझे तुरंत बता दे क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है. आयुष्मान, एनी प्रॉब्लम? Ayushman, I am talking to Ayushman only. Yes. Savita, just mute yourself. Whenever I will tell your name, you will then reply. Ma'am, in previous class you told orbital plane and orbital. So the Earth is tilted. So why orbital plane is not tilted? All the lines like Tropic of Cancer, Equator, and Tropic of Capricorn are tilted. So why orbital plane is not tilted? Okay, good question. Orbital plane जो है वो tilted क्यों नहीं है? Oh my God. इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछोगे मुझसे. चलो मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर करने की. ओके, अभी बस एक क्वेरी और लूंगी जो थोड़ी अलग हो, इन सारे टॉपिक से थोड़ी अलग हो. किसकी है ये प्रॉब्लम? कोई दूसरा बच्चा जो थोड़ा अलग क्वेश्चन करना चाहता है? नो,
wait. Kunal, wait. Wait. Jenia Singh, what's the problem? Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, who is Aryabhatta? Who was Aryabhatta? Okay. Kunal, Ma'am, I what's have one question. Kunal? Okay, Jenia, tell. Yes. Ma'am. हाँ. Yes. मैम अर्थ क्यों घूमती है? हाँ. मैम अर्थ क्यों घूमती है? अर्थ क्यों घूमती है? अरे बाबा. अच्छा, ये भी ठीक है. अर्थ क्यों घूमती है? अब एक मैम, बच्चा. I have a question. अरे बाबा. Ask me. Okay. Ma'am, what is actually not? Ma'am, Kunal Pandey. Yes. Tell your question. What? Ma'am, I have one question. Actually not question. What is actually not? Equinox. Okay, Kunal. Preeti. Ma'am, Yes. Wait. Shish, wait. Preeti, what's the problem? Ma'am, why is not how the day of making comes? I'm not getting Preeti what you want to say. Okay, class. So. Yatharth, mute. All of you just mute yourself. I'm not giving you second time because कुछ बच्चे हैं जिनके मन में क्वेरीज है, मुझे उन सबका लेना है. आपको एक मौका दिया था, आप उसमें जितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो. It's all up to you. All of you mute. Tuli, अभी mic mute करो. Okay. Shades, I'm taking last question from you. Yes, tell. Okay, so I am going to take your answers. Now I am going to give the answers. My first question is, आपका जो first question है that is circle of illumination. Circle of illumination क्या है? जैसे this is your earth, okay? अब ये जो earth है और ये आपका sun है. ये आपका सन है और ये अर्थ है. तो सन के आप कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट जब देखते हो तो उसके हाफ ही सर्किल पे लाइट पड़ती है ना. राउंड ऑब्जेक्ट के आधे एरिया पे लाइट पड़ती है, आधा एरिया डार्क होता है. तो ये जो रोटेशन ये स्पिन कर रही है और तो 12 बार्स मतलब इनकी तरफ सन की तरफ जो एरिया लाइट होता है वो एंड जो एरिया डार्क होता है 24 आवर्स में. तीनों रात हमारे पास क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, because of the rotation. So this is the circle of illumination. This is the circle of illumination. Illumination का मतलब क्या होता है? लाइट एरिया. ठीक है. तो ये इसी को ये जो लाइट है ये डिवाइड कर दे रही है ना लाइट एरिया और डार्क एरिया को. So it is known as circle of illumination. Number 2, reasons for rotation. अर्थ रोटेट क्यों कर रही है? बेटा ये नेचर है. एक मिनट वेट. म्यूट योरसेल्फ. रीजंस फॉर रोटेशन. रोटेशन अर्थ का क्यों हो रहा है? तो अर्थ का रोटेशन क्यों हो रहा है? अगर अर्थ का रोटेशन नहीं होता तो हमारे पास डेज एंड नाइट कैसे होती? हमारे पास सीजन चेंज कैसे होता? तो जो गॉड है उसने कुछ चीजें बनाई है नेचर में. क्लियर? कि इसकी वजह से अब आप कहोगे कि मैम हमारी नोज क्यों होती है? नोज स्मेल करने के लिए आपको मिली है. आईज का क्या मतलब है? आप कुछ देख सकते हो. रोटेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी अगर रोटेशन नहीं होगा यू डोंट हैव डे एंड नाइट. ठीक है. अगर नाइट नहीं होगी केवल डे ही होगा तो आपको एक्सट्रीम कंडीशंस, आपको एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आपको फेस करना पड़ेगा. केवल आपको हीट मिलेगी, लाइट मिलेगी. क्या आप जीवन भर के लिए हीट और लाइट में रहोगे? आपको अंधेरा नहीं चाहिए सोने के लिए, डार्कनेस नहीं चाहिए, आपको नाइट की जरूरत नहीं है. पूरे दिन काम करोगे तो थक के सोओगे कब? नाइट में. नाइट कब होगी? जब आपको अर्थ रोटेशन मिलेगा. एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है कि जैसे ये सन है और सन के चारों तरफ सन के चारों तरफ Who is this child speaking? Elliptical orbit means the orbit means होता है path. पाथ मतलब रास्ता. जिस
इज नोन एज एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये थोड़ा सा अंडे के शेप में है ना, ओवल शेप में है ना, सो इट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पे अर्थ जो है वो मूव कर रही है, क्लियर, और सन के चारों तरफ। दिस पाथ इज नोन एज एलिप्टिकल ऑर्बिट। नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन, विंटर एंड समर सोल्स्टिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ डे, अर्थ डे क्या होता है, आप देखिए हो ना कि जब वन रोटेशन अर्थ जो है वो अपना कंप्लीट कर रही है, अर्थ डे जो हम लोग देखे थे, एक दिन 24 आवर्स जो है अपना रोटेशन एक कंप्लीट करते हैं, दिस इज योर अर्थ डे। लीप ईयर क्या होता है, जब हमारे पास 366 डेज होते हैं, वी हैव 366 डेज। अब कैसे Excuse me, ma'am. वेट, अब कैसे कहोगे 366 डेज होते हैं, तो हमारे पास आप देखते हो ना कि वी हैव 30 डेज, इन नेक्स्ट मंथ वी हैव 31 डेज, फिर हमारे पास 30 डेज होते हैं, फिर 31 डेज होते हैं। लेकिन फरवरी का जो मंथ होता है दैट इज ओनली फॉर 28 डेज, ठीक है। लेकिन जब लीप ईयर आता है तो वो 29 डेज का हो जाता है फरवरी, यानी कि जो फरवरी है वो बन जाती है 29 डेज की, ठीक है। आपने ये देखा है कि अर्थ जो है वो कितना टाइम ले रही है, 365 डेज 6 आवर्स, 6 आवर्स वो टाइम लेती है वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के चारों तरफ, ठीक है। तो 6 आवर्स 1 ईयर में ले रही है, तो सेकेंड ईयर में भी क्या करेगी, फर्स्ट ईयर में कितना टाइम लिया, तो सेकेंड ईयर में भी 6 आवर्स लेगी, थर्ड में भी 6 आवर्स लेगी, और फोर्थ ईयर में भी 6 आवर्स लेगी। तो 6 बन गया 24 आवर्स। तो चौथे साल बाद जो है वो आपका क्या बनता है, आपका बनता है 1 डेज एक्स्ट्रा मिल गया आपको, तो 366 डेज हो गया लीप ईयर में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या हम जिस ईयर में है वो लीप ईयर है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, 2021 ईयर आपका चल रहा है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4 से डिवाइड किया तो ये नहीं आया, जीरो रिमाइंडर नहीं बचा, इट मींस इट इज नॉट अ लीप ईयर। बट 2022 भी नहीं है, 2023 भी नहीं है, बट व्हेन यू टेक 2024 इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो ये तरीका होगा आपको ये पता करने का कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, ठीक है। तो 2024 will be leap year and at that time you will get 366 days, clear। अब ये हो गया लीप ईयर। Excuse me, ma'am. लीप ईयर के बाद ऑर्बिटल प्लेन टिल्ट। अब एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि मैम ऑर्बिटल प्लेन टिल्ट क्यों होती है। देखो बेटा, ये जो आपने कहा था ना कि मैम ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, ये सब तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी जो अर्थ है ये अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, ठीक है, अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसी टिल्टेशन की वजह से, टिल्टेशन का मतलब होता है झुकाव, इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसी टिल्टेड की वजह से आप देखते हो कि नॉर्थ पोल पे कभी कभी हमारा जो नॉर्थ पोल है जब वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, ठीक है, नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, समर सीजन ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो वी गेट समर सोल्स्टिस कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करते हैं, साउथ और नॉर्थ डिवाइड कर रहे हैं ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें जो है ऐसा मिल रहा है। अब फिर क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्थ पोल टिल्टेड है, अब दूसरी चीज क्या है कि हमें समर सोल्स्टिस में हम लोग को एक दिन हम लोग को हमारा जो दिन होता है वो बड़ा होता है। समर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, डेज आर लॉन्ग, नाइट आर शॉर्ट। बट ऑन 21 जून को हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जितनी भी कंट्रीज हैं 21 जून को उनको मिलता है सबसे बड़ा दिन, ठीक है। 21 जून को वी सेलिब्रेट लॉन्गेस्ट डे। क्यों, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की लाइट जो होती है वो डायरेक्ट पड़ रही है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए हमको सबसे
day we get longest day that is on 21st June. और दिन लंबा होगा तो रात क्या होगी, छोटी हो जाएगी, तो longest day and short night. ये क्लियर हुआ? ये हो गया longest day and short Excuse me, night. ma'am. आपके पास पेशेंस नहीं है क्या? बिल्कुल Excuse me, ma'am. you don't have any patience. longest day and short night. ठीक है, कब हो रहा, कब हुआ ये 21 जून को. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो टिल्टेड है सन की तरफ. ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज फॉल होती है, इसीलिए हमें ये एक्सपीरियंस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी तो ये हो रहा है समर, लेकिन जब यही अर्थ मूव करते करते, क्या प्रॉब्लम है आपको? ये बच्चा कौन है? क्या प्रॉब्लम है? कौन है ये? व्हाट्स द प्रॉब्लम? यस टेल, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अभी आप बोलोगे नहीं, मैं पूछ रही हूँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है Ma'am, आपको? if there is, हाँ, मैम अगर रोज 24 आवर होते हैं तो मैम रोज ही अर्थ डे होगा. रोज ही क्या होगा? मैम अर्थ डे. आपका अर्थ डे जो है, आपको पता है कि जो वर्ल्ड रोटेशन वो कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया 24 आवर्स जब उसने एक अपनी स्क्रीन पे चारों तरफ घूम ली, दैट इज अर्थ डे कंप्लीट. अब इसको रोज अर्थ डे और ये सब क्या है, आप बस उसका मतलब समझ लो कि होता क्या है. मैं बता रही थी आपको ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस की बात. अब विंटर सोल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे आएगा? जब देखो बेटा, हमेशा एक चीज याद रखना, आप कंफ्यूज कब हो रहे हो? आप केवल एक हेमिस्फीयर को लेके चलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेके चलो. समर उसमें क्योंकि जो चीजें यहाँ होगी इसके अपोजिट केस इधर बनेगा सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ. ठीक है, तो अगर हम लोग समर फेस कर रहे हैं तो ये लोग क्या फेस करेंगे? विंटर फेस करेंगे. ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करनी है, तो चलो हम वापस से अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलते हैं दूसरी साइड में, तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, मैं दिखा रही हूँ आपको. आप एक मिनट क्लास, ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे मान लो कि ये सन है. ठीक है, और अभी तो हमने यहाँ पे अर्थ को दिखा दिया. ठीक, और मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोल जो है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. ठीक है, तो ये तो अभी तो ये कंडीशन बन रही है. तो अभी क्योंकि नॉर्थ पोल टिल्टेड है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कहानी मैं बता रही हूँ. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस की बात कर रही हूँ. अब आप ये देखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस कब आता है? तो जब यही अर्थ मूव करते करते अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करते करते जब यहाँ आ जाती है, तो जैसे ही यहाँ आती है तो अब क्या हो रहा है कि अब जो लाइट है यानी कि अब जो साउथ पोल है वो सन के नजदीक आ रहा है. साउथ पोल की लाइट जो है वो सन की तरफ पड़ रही है, नॉर्थ पोल दूर हो गया. तो जैसे नॉर्थ पोल दूर हो गया, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले लोग थे, अब उन लोगों को लाइट और हीट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, तो अब वहां पे हो जाता है विंटर सीजन. क्यों? क्योंकि अब साउथ पोल सन की तरफ चला गया है, तो इनकी हीट और लाइट मिल रही है साउथ पोल वालों के जो एरिया में जितने लोग सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनकी तरफ जा रहा है. आपको शायद एक ना छोटा सा वीडियो भेजूंगी बेटा, तो उस वीडियो से ना थोड़ा और क्लियर होगा. ये तो 3D तो है नहीं जो आप अच्छे से समझ पा रहे हो. ठीक है, रुको मैं आपको वीडियो भेजती हूँ क्लियर करने के लिए. तो ये नॉर्थ पोल हुआ एंड दिस इज योर साउथ पोल. तो अब साउथ पोल इधर टिल्टेड हो गया है, तो अब हमें समर नहीं मिलेगा, अब हमें मिलेगा विंटर, क्योंकि साउथ पोल वालों को अब हीट और लाइट मिलेगी ज़्यादा. समझ में आ रहा है ना? सदर्न हेमिस्फीयर वालों को मिलेगा, तो हम लोग फेस करेंगे विंटर. अब एक इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट था, तो जब यहाँ से अर्थ मूव करते हुए यहाँ आई, तो उसके पहले बीच में यहाँ आई थी. तो जब यहाँ आई थी तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ना और सन की रेस ना नॉर्थ पोल पे पड़ रही है ना साउथ पोल पे पड़ रही है, बल्कि इक्वेटर पे पड़ रही है. तो जब सन की रेस इक्वेटर में फॉल होती है तो दोनों तरफ नाइदर पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल डे एंड नाइट को फील किया जाता है.
क्यों? Because the sun's rays directly fall on the equator. So the both the hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere, they get equal day and night. तो equinox का मतलब ही क्या हुआ? Equinox मतलब होता है equal day and night. And number 2, इसी सीजन में आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले क्या फील करते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले ऑटम सीजन मनाते हैं. ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ का मौसम जो आपको दिसंबर के आसपास मिलता है, विंटर से पहले मिलता है, समर के बाद मिलता है. ठीक है, तो ऑटम सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में केवल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली वन हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ताकि आप उसी से समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम की बात कर सकें. तो जब ये ऑटम सीजन आपको यहाँ मिलता है, ये बच्चे कौन है? Who is this? तो यहाँ पर तो इक्विनॉक्स मिल गया, ऑटम सीजन मिल गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, फिर यहाँ पे विंटर सीजन मिला, और फिर जब मूव करते करते अर्थ यहाँ पे आई. अर्थ का तो मैंने शेप ही खराब कर दिया पूरा. 1 मिनट क्लास, जस्ट अ मिनट. आई एम इरेजिंग दिस एंड आई एम मेकिंग अ कोड. ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि जब ये आए तो हमने ये अर्थ को लिया, और फिर यहाँ पे क्या होता है, कहाँ गया? अभी तो ये था, फिर ये वाली जो लाइन है, तो यहाँ पे लाइट सन की इक्वेटर पे पड़ रही है. ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे लाइट इक्वेटर पे पड़ रही है. इक्वेटर पे यहाँ पे लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे भी लाइट इक्वेटर पे पड़ रही है. तो जब सन की रेस जो इक्वेटर पे पड़ती है, ना ही नॉर्थ पोल पे ना ही साउथ पोल पे झुका होता है इनकी तरफ, तो हम फील करते हैं स्प्रिंग सीजन मार्च में. ठीक है, तो इक्विनॉक्स में हम लोग, क्योंकि उस समय हम लोग ना बहुत ज़्यादा ठंडी मनाते हैं, ना बहुत ज़्यादा गर्मी, मौसम एकदम बढ़िया होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, मज़ा आती है. ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है, यही है इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट. इक्विनॉक्स में हम लोग स्प्रिंग सीजन मनाते हैं, इक्विनॉक्स में हम लोग ऑटम सीजन मनाते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग 22 मार्च में हम लोग स्प्रिंग मनाते हैं, और दिसंबर के आसपास हम लोग मनाते हैं क्या, सितंबर में. अपना देख लेना टाइम क्या है, सितंबर में हम लोग मनाते हैं ऑटम सीजन. ठीक है, और अब आपको क्या बताना है? अच्छा ये बताओ क्लास, अभी जो बताया वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? एक बात, अगर मैं आपको कहूँ कि draw the diagram of summer and winter in the solstice and explain it in your own words, तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने बना लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेकर के. क्लास सुनो, छवि वेट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेकर के अपना डायग्राम बना लो, और उस डायग्राम, दिस इज योर होमवर्क, आई विल चेक इट ऑन मंडे. मैं मंडे को इसको चेक करूँगी, और वो विंटर सीजन. ठीक है, एंड वन थिंग यू हैव टू डू, draw the diagram of winter and summer solstice and explain in points. Points में explain करोगे, northern hemisphere को रेफर करना और points में explain करोगे. Is it clear to you everyone? Yes ma'am.